नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार। सिलीगुड़ी में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना वायरस। सिलीगुड़ी समेत पूरे उत्तर बंगाल में कोरोना तेजी से अपना पैर पसार रहा है। इस बीच सोमवार को सिलीगुड़ी और उसके आसपास के क्षेत्रों में कोरोना के 19 नए मामले सामने आने की खबर है। दार्जिलिंग जिला स्वास्थ्य विभाग सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को सिलीगुड़ी नगर निगम व आसपास के क्षेत्रों में कोरोना के 19 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इन सभी को आगे की जांच की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि सिलीगुड़ी में कोरोना के बढ़ते मामले से लोग बेहद आतंकित है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर बुधवार से चंपासरी बाजार बंद। बुधवार से 10 दिनों के लिए सिलीगुड़ी के चंपासरी बाजार बंद रहेगा। आज सिलीगुड़ी के स्टेट गेस्ट हाउस में एक बैठक की गई। इस दौरान महकुमा शासक सुमंत सहाय, नगर निगम के कमिश्नर सोनम वांगदी भूटिया समेत सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के उच्च अधिकारी व चंपासरी व्यवसायी समिति के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में बुधवार से 10 दिनों के लिए बाजार बंद करने का फैसला लिया गया है। ज्ञात हो कि 46 नंबर वार्ड में चंपासरी बाजार पड़ता है। पिछले कुछ दिनों से इस वार्ड में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। कल 46 नंबर वार्ड में 7 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। संक्रमण को रोकने के लिए रेगुलेटेड मार्केट तो बंद कर दिया गया है। इसके अलावा बुधवार से चंपासरी बाजार को भी बंद किए जाने की जानकारी नगर निगम के कमिश्नर सोनाम वांगदी भूटिया ने जानकारी दी है। একটা মিটিং হোল্ড করেছি স্পেশালি বেসিক্যালি আমাদের চম্পাসরি যত মার্কেট আছে, তিনটা মার্কেট আছে এখানে। একটা ইলিগাল টাইপ আর দুটো একটু রেজিস্টার্ড টাইপ আছে ওদের। আর এছাড়া আমাদের বিধান মার্কেটের যে মার্কেট কমিটি আছে ওনাদের মেম্বার, চম্পাসরি মার্কেট কমিটির মেম্বার, তার সঙ্গে আমাদের নান্টু বাবু আছেন, প্রেসিডেন্ট অফ বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতি। আর আমাদের মেম্বার ফ্রম এসএমসি শঙ্কর ঘোষ সাহেবও আছেন। তারপর আমাদের সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের অফিসার্সরা আছেন, এডিসিপি সাহেব আছেন, এসিপি সাহেব আছেন, এসডিও সাহেব এটা মিটিংটা কল করেছেন। তো আজকে বেসিক্যালি আমরা রিগার্ডিং কোভিড কেসেস যেভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে সেটাকে কিভাবে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি, সেখানে আপনারা জানেনই মাননীয় ডিএম সাহেব অলরেডি রেগুলেটেড মার্কেটকে এক সপ্তাহের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে একটা কমিটি ফর্ম করা হয়েছিল, তার ফার্স্ট মিটিং আজকে আমরা করলাম। এখানে মার্কেট কমিটিকে আমরা কনফিডেন্সে রেখে প্রথম স্টেপ হিসাবে আমরা চম্পাসরি মার্কেটকে আমরা ডে আফটার টুমরো, পরশু দিন থেকে আমরা 10 দিনের জন্য বন্ধ করছি। আর কালকে মাইকিং টাইকিং ফ্রম আইএনসিএ ডিপার্টমেন্ট থেকে পুরো হবে। এছাড়া ওখানে একটা ব্যারিকেডিংও হবে মাঝখানে, যাতে কোনো রকম ইলিগাল লোক বসতে না পারে, সেটা পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ক্লিয়ার করবে আর কি। আর বিধান মার্কেটটা এখন যেটা কথা হলো, ওনারা 2-3 দিনের মধ্যে আবার শিফট করে, সেটা মাননীয় ডিএম সাহেবও বলছিলেন, সেটা এসডিও সাহেব এটা অ্যানাউন্স করেছেন। ওই ফল সবজি মার্কেটটা আবার শিফট করে স্টেডিয়ামের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। আর রিমেনিংটা যেটা আছে সেখানে ওনারা নিজের ভলেন্টিয়ার কমিটি থেকেও ভলেন্টিয়ার দেবে। এছাড়া ব্যারিকেডিং করে যাতে কীভাবে ক্রাউড কন্ট্রোল করা যায়, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটা কীভাবে মেনটেন করা যায়, আর ক্লিনলিনেস আর স্যানিটাইজেশনটা কীভাবে হয় সেটাকে মেনটেন করা হবে। আমাদের সবারই প্রচেষ্টা হচ্ছে যাতে এই কোভিড কেসেস যেটা আছে সেটাকে আমরা অ্যারেস্ট কীভাবে করতে পারবো, নাম্বারটা যে বেড়ে যাচ্ছে সেটাকে কীভাবে কমাইতে পারবো। সো এটাতে আজকে মিটিংটা খুব এসডিও সাহেবের ইয়েতে মানে আমাদের খুব ফ্রুটফুল মিটিংই হয়েছে। অল দ্য রিলেভেন্ট পয়েন্টস ওয়ার ডিসকাসড আর ডিসিশনসটাও হয়েছে। এবার আমাদের স্টেপটা হবে এ পর্যন্ত যেটা হয়েছে। আজকে যদি আমরা 20টা ধরি, তাহলে কালকে 17, 18, 19 অ্যারাউন্ড 90-র কাছাকাছি চলে যাবে আর কি অ্যাপ্রক্সিমেটলি। একটু বেশিটা রিলেটেড হচ্ছে রেগুলেটেড মার্কেটে চাকরি করতো বা কাজ করতো, ওখানে ক্যারি করতো এরকম কিছু রিলেটেড আছে। সেজন্যই অলরেডি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে স্টেপ নিয়ে রেগুলেটেড মার্কেটে বন্ধ করে দিয়েছে। कोरोना संक्रमण एवं अनलॉक 1 के तहत आज 15वें दिन दार्जिलिंग क्षेत्र के सांसद राजू बिस्टा कालिंगपोंग परिभ्रमण के लिए पहुंचे। उन्होंने कालिंगपोंग क्षेत्र में बने विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों का परिभ्रमण भी किया और वहां की वास्तविक हालतों का जायजा लिया। उन्होंने कालिंगपोंग जिला अस्पताल पहुंचकर जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डॉक्टर पी.के. बराई के साथ मुलाकात कर जिले में कोरोना वायरस के वास्तविक स्थिति के बारे में जायजा लिया। गौरतलब है कि कालिंगपोंग जिले में अभी तक 29 कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस रहे हैं। इसी को केंद्र कर
आज सांसद जिले का परिभ्रमण करने के लिए पहुंचे थे। सांसद राजू बिष्ट ने बताया कि दार्जिलिंग जिला अस्पताल एवं कालिम्पोंग जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित किए जाने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वहाँ पहाड़ के लिए ICMR के द्वारा परिचालित किए जाने वाले कोविड-19 की टेस्टिंग मशीन पहाड़ में सेट करने के लिए केंद्र सरकार एवं वे तैयार रहने की बात भी कही। इस बीच उन्होंने बताया कि यहाँ दोनों कार्यों के लिए GTA एवं राज्य सरकार के द्वारा प्लानिंग एवं मैन पावर रेडी किए जाने की बात भी कही। आज के परिभ्रमण कार्यक्रम में सांसद के साथ कालिम्पोंग जिले की विधायिका सरिता रॉय, डॉक्टर RV भुजेल, विजय सोनदास, थुप्देन भोटिया एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। हेर्नुहोस्, आज कालिम्पोङ भ्रमणमा सर्वप्रथम त मैले 7 माइलमा जुन मिलन सङ्घ संस्थाले क्वारेन्टाइन सेन्टर बनाउनु भएको छ त्यहाँ भिजिट गरेँ र त्यसको पश्चात हामीहरूको कालिम्पोङको CMOलाई पनि भेटेँ, मिस्टर बराईलाई। र अहिले भर्खरै मैले हामीहरूको कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट अस्पतालका सुप्रिन्टेन्डेन्टलाई पनि उहाँलाई पनि भेटेँ, उहाँसँग पनि कुराकानी भयो। ओभरअल के छ भने अब यो कोभिड महामारी सङ्कटको समयमा यहाँको प्रशासन, GTA, म्युनिसिपालिटी है, अरू हामीहरूका एलायन्स पार्टीका साथी दलहरू, हामीहरूको विधायकज्यू सबै मिलेर काम गरिराख्नु भएको छ। धेरै कुराहरूमा सन्तुष्टि पनि छ, तर एक दुईवटा कुरालाई मैले यसो बुझ्दाखेरि अझै इम्प्रुभमेन्टको आवश्यकता मैले देखिरहेको छु। त्यसका लागि म रिपोर्ट पनि तयार गर्दैछु। डल्लै दार्जिलिङको, सिलिगुडीको र कालिम्पोङको आउँदो दिनमा म यहाँको प्रशासनलाई पनि त्यो ह्यान्डओभर गर्छु र राज्यको सरकार र लगायत केन्द्र सरकारमाथि पनि त्यो रिपोर्टहरू म पेश गर्नेछु। अहिले मैले रिपोर्ट पाए अनुसार CMOसँग कुरा भयो मेरो। अब एज अन टुडे कालिम्पोङमा हेर्नुहोस् 29 एक्टिभ केस अहिलेसम्म छन् अरे, अफिसियल डाटा 29 एक्टिभ केस। अनि मैले सोद्धाखेरि स्याम्पल कति दिनमा रिपोर्ट, स्याम्पलको टेस्ट रिपोर्ट आउँदैछ भन्दा CMOले भन्नुभयो लास्ट 2 दिनको पेन्डिङ छ, अदरवाइज रेगुलरली हामीले स्याम्पल पाइरहेको छौँ। बिचमा अलिक दिन डिले भएको थियो, त्यो एउटा पोजिटिभ कुरो हो, पोजिटिभ साइन हो। उहाँले मलाई यो पनि भन्नुभयो जति पनि सिम्पटम डेभलप गरेका सबै पेसेन्टहरूको हाम्रो स्याम्पल कलेक्ट गरेर सिलिगुडी पठाउँदैछौँ र टेस्ट रिपोर्ट 1 दिन 2 दिनमा आइरहेको छ। मतलब यो एउटा राम्रो कुरा हो। र त्यसरीले मैले सोद्धा टोटल होम क्वारेन्टाइनमा कतिजना छन् र इन्स्टिट्युसन क्वारेन्टाइनमा कतिजना छन्, त्यसको डाटा अलिकति टाइम लाग्यो, तर त्यसको डाटा पनि मैले CMO अफिसबाट पाएँ। र एज अन 15 जुन, आज 15 तारिक हो, 16, आज 15, आजको दिनको अपडेट हेर्दाखेरि टोटल क्वारेन्टाइन कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टमा 2153 इज द काउन्ट, 2153। र इन्स्टिट्युसन क्वारेन्टाइनमा चाहिँ 14 जना र होम क्वारेन्टाइनमा चाहिँ 2139। सिलीगुड़ी में देह व्यापार धंधे का पुलिस ने किया भांडाफोड़। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के भक्तिनगर थाने की पुलिस ने गोपनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर देह व्यापार के बड़े धंधे का खुलासा किया है। शहर के शास्त्री नगर इलाके में छापा मारकर भक्तिनगर थाने की पुलिस ने 5 युवती और 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में नंदलाल अग्रवाल, सज्जन सिंह, अरविंद कुमार शर्मा और सौरभ डे शामिल है। भक्तिनगर थाने के ACP स्वपन सरकार ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और यहां पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल है। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन के प्रधान नगर थाने की पुलिस ने अनलॉक 1.0 के दौरान गांजा तस्करी करने जा रहे एक गिरोह को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गिरफ्तार गिरोह में से 2 महिला और एक पुरुष शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों का नाम मिलन दास पुरुष और दोनों महिला का नाम बसंती मुमर, सीमा महतो है। तीनों दक्षिण दिनाजपुर के रहने वाले हैं। पुलिस को तीनों आरोपियों के पास से 22.240 किलो गांजा बरामद किया है। तीनों आरोपियों को प्रधान नगर थाने की पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आज आरोपियों को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। राज्य सरकार द्वारा सूची नहीं भेजने से किसानों को नहीं मिल रही है केंद्रीय अनुदान। ये बातें कही है पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष विश्वप्रिय रॉय चौधरी ने। मंगलवार से प्रधानमंत्री के खुले पत्र को लेकर
घर घर जाएंगे भाजपा कर्मी। पश्चिम बंगाल भाजपा के उपाध्यक्ष विश्वप्रिय रॉय चौधरी ने राज्य की तृणमूल सरकार पर सरकारी सुविधा प्रदान करने के लिए किसानों की सूची केंद्र को मुहैया नहीं कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को किसानों की सूची नहीं भेजे जाने से उन्हें केंद्र का सहयोग नहीं मिल रहा है। सोमवार को मालदा जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार देश के सभी किसानों को 1000 रुपए देने की घोषणा की है। देश में सभी भाजपा व गैर भाजपा राज्य के किसान इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। केवल पश्चिम बंगाल इसका अपवाद है। हालांकि उन्होंने जोर देते हुए कहा कि किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, श्रमिकों की तरफ से किसानों को भी वेब पोर्टल के सहयोग आवश्यक सहायता मुहैया कराई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कल से भाजपा द्वारा जनसंपर्क अभियान तेज करने का ऐलान करते हुए कहा, भाजपा कार्यकर्ता सरकार की उपलब्धियों को केंद्रित प्रधानमंत्री के खुले पत्र को लेकर लोगों के घर घर जाएंगे। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा उपाध्यक्ष की इस टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताया है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव शुभमयी बासु ने कहा कि केंद्र सरकार चाहे तो किसानों की मदद कर सकती है, लेकिन केंद्र सरकार से पहले राज्य सरकार ने किसानों को 5000 रुपए का आर्थिक अनुदान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जो भी आज सोचती है, केंद्र वो कल सोचता है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री के खुले पत्र को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जनसंपर्क अभियान पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस साल भर लोगों के साथ रहती है, इसलिए उसे अनुष्ठानिक रूप से लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, जो लोग साल भर लोगों के साथ नहीं रहते हैं, उन्हें इस तरह के कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ती है, जो भाजपा अब कर रही है। आज भाजपा उपाध्यक्ष के कार्यक्रम में उत्तर मालदा के भाजपा सांसद खगेन मुर्मू समेत भाजपा के शीर्ष नेता मौजूद थे। পশ্চিমবঙ্গে কৃষক বন্ধু প্রকল্প মমতাময়ী সরকার চালু করেছেন। ইতিমধ্যেই প্রচুর কৃষক তাতে নাম নথিভুক্ত করে 5000 টাকা বার্ষিক সাহায্য পেয়েছেন। প্রশাসনিক ব্যাপার অমিত শাহ কি বলেছেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কি বলেছেন সেটা দলীয় স্তরে আমাদের জানা সম্ভব নয়। তারা নাকি লিস্ট চেয়েছেন, সেটা কি হবে আমাদের জানা নেই। তবে তারা যদি পোর্টাল খুলে মানুষকে সহায়তা করতে চান, কৃষকদের সহায়তা করতে চান, তাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই, তারা করুন। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে যে পশ্চিমবাংলা আজকে যেটা ভাবে সেটা কেন্দ্র কিন্তু তারপরে করে। তাহলে মমতাময়ী সরকার মানুষের কথা ভাবে। আর তৃণমূলের বাড়ি বাড়ি যাওয়ার এখন কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। কারণ তৃণমূলের সরকার এবং তৃণমূল দলটা প্রতিনিয়ত মানুষের পাশে থাকে, মানুষের 24 ঘন্টার আপদ বিপদের সাথী, এবং তারা প্রতিনিয়ত মানুষের জন্য কাজ করে। আনুষ্ঠানিকভাবে 12 থেকে 30 তারিখ অবধি বাড়ি বাড়ি গিয়ে দলের প্রচার করা, ওটা বিজেপির দ্বারাই সম্ভব। আমাদের এটা করার দরকার পড়ে না। আমরা এমনি মানুষের সঙ্গে আছি, মানুষের পাশে আছি। তো এই সাংবাদিক সম্মেলনে আমরা আপনাদের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন আপনাদের মাধ্যম দিয়ে আমাদের বর্তমান সরকার যে বাংলায় চলছে সেই সরকারের মাননীয়ার কাছে আমাদের কয়েকটি প্রশ্ন আছে। প্রথম কথা, প্রশ্ন যে পশ্চিমবাংলায় আজকে উনি কৃষকদের জন্যে কেন্দ্র সরকার যে কৃষক সম্মান নিধি 6000 টাকা করে দেওয়ার কথা, সেই 6000 টাকা এবং লকডাউনে 2000 টাকা করে সারা ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশ, বিজেপি শাসিত হোক আর বিজেপি অশাসিতই হোক, সব প্রদেশের কৃষক পেয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, পশ্চিমবাংলায় এরকম 76,000 কৃষক যারা 6000 টাকা করে পাওয়ার তারা পায়নি। আমার আপনাদের মাধ্যমে প্রশ্ন দিদির কাছে এখনও, দিদি বলছেন আমি কিষাণ সাথী করেছি। কিষাণ সাথী যদি তারা করে থাকেন পান, কিন্তু উপরন্তু যদি কেন্দ্র সরকারের কাছে পায় টাকা, তাহলে আপনার আপত্তি কিসের? সেই প্রশ্ন আমরা আপনার কাছে রাখছি। এবং আমরা এটাও বলছি, এর আগের দিন অমিতজিও বলেছেন উনি যদি তালিকা পাঠান তাহলে আমরা সেটা করব।
बम धमाकों से दहला मालदा हरिश्चंद्रपुर का इलाका, जान माल का नहीं हुआ है कोई नुकसान। मामले में जांच में जुटी पुलिस। मालदा के हरिश्चंद्रपुर थाना अंतर्गत तुलसीहाट इलाके में रविवार रात को अचानक से बम विस्फोट होने के कारण स्थानीय लोग आतंकित हो उठे। हरिश्चंद्रपुर तुलसीहाट इलाके में काफी दिनों से अवैध रूप से शराब का ठेका चल रहा है और शराब ठेके के नजदीकी बम विस्फोट हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि धमाका काफी जोरदार था। लोगों का कहना है कि यहाँ पर काफी दिनों से अवैध रूप में शराब के ठेके चल रहे हैं और यहीं के दो युवकों ने विस्फोट किया है। विस्फोट का असर आज भी देखने को मिला और इस इलाके में अधिकतर दुकानें आज नहीं खुली हुई है। काफी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। हरिश्चंद्रपुर थाने के आईसी संजय कुमार ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। আমাকে ফোন আসে প্রায় 1-1:30টার সময় যে আমাদের একটা পাড়ায়, আমাদের পশ্চিম বুথ তুলসিয়াতা পশ্চিম বুথে আমাদের পাড়ায় কোনো কিছু আওয়াজ করলো। তো আমি ওখানে গেলাম, জিজ্ঞাসা করলাম কী হয়েছে। কেউ বলছে সিলিন্ডার বাস, কেউ বলছে বোম বাস। তো আমি বললাম যে তদন্ত তো হওয়া উচিত, কী বাস হয়েছে। তখন আমি আইসিকে ফোন করা হয়, আইসি সাহেব আসেন এখানে আইসি সাহেব আসার পরে ওখানে আলোচনা হলো যে যার বাড়িতে হয়েছে সে বলছে আমার বাড়িতে 2 জন এসেছিল, 2-3 জন এসেছিল, এসে আমাকে বলছিল যে আমাকে দারু দাও, দারু বিজনেস করে দারু দাও। ওই সময় নাকি ওখানে কিছু বাস হলো, আর কী বাস হলো সেও বুঝতে পারছে না। সে বলছে আমি অজ্ঞান হয়ে গেছি। ওই সময় আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম এবং 2 জন পালিয়ে গেল। ওখানে রক্তাক্ত অবস্থায় সম্পূর্ণ ছড়িয়েছিল এবং পুলিশ তদন্ত করার পরে সেখান থেকে যেটা কুলু আছে নিয়ে গেল এবং সেই জায়গা থেকে সিল করে গেল। সেই জায়গা থেকে সিল করে চলে গেল এবং পুলিশ তদন্ত করছে কারা ছিল এবং কারা এই জিনিসটা করে গেছে। আমি শুনলাম নাকি কেউ জখম হয়েছে, যার একটা হাত নাকি নষ্ট হয়েছে, আরেকজনের কপালে লেগেছে। ওখানে রক্তাক্ত অবস্থায় ছড়িয়ে লোকগুলো বলল ওখানে রক্ত পড়েছিল অনেক জায়গায়। তারা এখন কোথায় আছে? তারা কোথায় আছে সেটা জানা নেই, সারা পালিয়ে গেছে, পিছনে গেট দিয়ে পালিয়ে গেছে। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आपके विजुअल एडवर्टाइजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अफमान चक्रवात प्रभावितों के लिए राहत सामग्री रवाना। मीरा फाउंडेशन नामक विद्यार्थियों का एक स्वयंसेवी संगठन ने अफमान पीड़ितों की मदद के लिए राहत सामग्री भेजी है। बता दें कि हाल ही में आए चक्रवाती तूफान अफमान से दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप सहित विभिन्न इलाकों में भारी नुकसान किया है। मीरा फाउंडेशन ने इन इलाकों के तूफान प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री प्रदान की जाएगी। इनमें मुख्य रूप से कपड़े, तिरपाल आदि सामान है। मीरा फाउंडेशन के अध्यक्ष सौतीप घोष ने कहा कि इस संगठन का गठन विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों ने मिलकर किया है। अफमान की घटना के लगभग 3 सप्ताह बाद कई लोग बेघर है, उनके पास भोजन, वस्त्र या पीने का पानी नहीं है। ऐसे में उन्होंने असहाय लोगों को मदद करने का निर्णय किया है। उन्होंने बताया कि लॉरी में राहत सामग्री को तूफान प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। रास्ते में रायगंज क्षेत्र में संगठन के सदस्य इस रैली में कुछ और राहत सामग्रियां लोड करेंगे। কিছু আমরা ছাত্ররা মিলে আমাদের এটা ফাউন্ডেশনটা হচ্ছে মীরা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমরা আমফান দুর্গত অঞ্চলে আজকে প্রায় আমফানের 21 দিনের উপরে হতে চললো, কিন্তু আমরা এখনও দেখছি যে ওখানে বাড়িঘর ভেসে গেছে,
অনেক প্রয়োজনীয় সামগ্রীও ভেসে গেছে। ওখানকার মানুষের জীবন অত্যন্ত দুর্বিষহভাবে চলছে। তাই আমরা এখন আমফান, যেহেতু কাকদ্বীপ, সাউথ 24 পরগনা, আমরা মূলত কাকদ্বীপে আমরা এখানে পাঠাচ্ছি। আমরা আজকে 30টার মতন ত্রিপাল এবং কিছু পুরনো জামা কাপড় আমরা কাকদ্বীপে পাঠাচ্ছি। আমাদের এখান থেকে এই গাড়িটা যাবে রায়গঞ্জে যাবে, এবং রায়গঞ্জে আমাদের ওখানে আরও একটা টিম আছে, মীরা ফাউন্ডেশনের টিম। ওরা ওখানটায় কিছুটা কালেকশন করেছে, ওরা ওখানে দেবে, এবং বাকিটা এটা গিয়ে গোটাটা আনলোডিং হবে কলকাতায়, এবং কলকাতা থেকে আমাদের সকলে মিলে কাকদ্বীপে গিয়ে এটা ডিস্ট্রিবিউশন হবে আগামী রবিবার। कोरोना वायरस के संकट के समय में आम लोगों तक खबरों को पहुंचाने में जुटे 300 पत्रकार बांग्लादेश में अभी तक हो चुके हैं संक्रमित, 5 की गई है जान। कोरोना वायरस के संकट के समय जहां एक तरफ चिकित्सक और पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं, उस और पत्रकार भी लोगों तक खबर पहुंचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य कर रहे हैं। बांग्लादेश में अभी तक करीब 300 पत्रकार कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से 5 लोगों की मौतें भी हुई है। पत्रकारों के खबरों को सभी तक पहुंचाने के लिए अमादेर अधिकार नामक एक फेसबुक ग्रुप बनाया गया है, जिसमें पत्रकारों के संबंधित सभी जानकारी दी जा रही है। इस ग्रुप के एडमिन तथा न्यूज एज के पत्रकार अहमद फैजल ने बताया कि अभी तक बांग्लादेश में 307 पत्रकार कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से 5 लोगों की मौतें हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की मदद के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। पत्रकारों पर विशेष रूप से ध्यान देना बेहद जरूरी है। জানেন যে বাংলাদেশে এই পর্যন্ত প্রায় 300 জন গণমাধ্যম কর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন, এবং এর মধ্যে 5 জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। আর পাশাপাশি 3 জন করোনার উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন, অর্থাৎ 8 জন গণমাধ্যম কর্মীকে আমরা হারিয়েছি। তো আমরা যারা গণমাধ্যম কর্মী আছি, আমরা সবসময় চেষ্টা করি যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আপনাদের মাঝে সংবাদ পৌঁছে দেওয়ার জন্য। এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি যে প্রতিষ্ঠানটিতে কাজ করি, এমবিটিভি, আমি এই এমবিটিভির পক্ষ থেকে করোনাকালীন সময়ে চট্টগ্রাম, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, মুন্সিগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, আমি এই জেলাগুলোতে আমি করোনা পরিস্থিতি নিয়ে সরেজমিনে প্রতিবেদন করেছি, এবং ঢাকাতে বেশ কিছু সরেজমিন প্রতিবেদন করেছি। তো দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটা কথাই আমি বলবো, আপনারা এই করোনাকালীন সময় অবশ্যই ঘরে থাকবেন, ঘরের বাইরে কোনো অবস্থাতে হবেন না। সংবাদ আমরাই গণমাধ্যম কর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আপনাদেরকে পৌঁছে দেবো। আর আপনারা আমাদের জন্য আশীর্বাদ করবেন, আমরা যেন ভালো থাকতে পারি, সুস্থ থাকতে পারি, করোনা মুক্ত থাকতে পারি। তাহলে আমরা আরো বেশি বেশি করে আপনাদের কাছে আমাদের সংবাদ, যে আপনারা যে সংবাদের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন, আমরা যেন সার্বিক পরিস্থিতি আপনাদের মাঝে তুলে ধরতে পারি। बासरहाट के सैदपुर बीपीओ में एक जवान ने अपनी ही राइफल से गोली मारकर की आत्महत्या। बासरहाट महकुमा के हसनाबाद थाना अंतर्गत भारत बांग्लादेश सीमा स्थित सैदपुर बीपीओ में रविवार रात को ड्यूटी पर तैनात एक जवान ने अपने ही राइफल से खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौत हो गई है। गोली की आवाज सुनकर अन्य जवान मौके पर पहुंचे और देखा तो उसका शरीर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। तत्काल उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गुजरात के रहने वाला इस जवान का नाम आशीष परमार था। वह 85 नंबर बटालियन का जवान था। उसकी मौत से सैदपुर बीपीओ के अन्य जवानों में शोक की लहर फैल गई है। किसी की समझ में नहीं आ रही कि उसने आत्महत्या क्यों की। बीएसएफ के उच्च अधिकारियों ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। रायगंज शहर के 25 नंबर वार्ड में खुद को सेल्फ क्वारंटाइन करने वाले 10 लोगों को फूलों का माला पहनाकर किया गया स्वागत। रायगंज शहर के 25 नंबर वार्ड के 10 युवकों ने पिछले 10 दिनों से खुद को एक क्लब में क्वारंटाइन कर रखा था। पिछले 10 दिनों से उनके शरीर में किसी प्रकार का लक्षण नहीं मिलने के बाद आज वे लोग बाहर आए और स्थानीय लोगों ने उनको फूल माला पहनाकर स्वागत किया। दरअसल उनका एक दोस्त कुछ दिनों पहले पॉजिटिव पाया गया था। सिलीगुड़ी में उसका रिपोर्ट भेजी गई थी, जो पॉजिटिव आई थी। इसके बाद उसके संपर्क में आने वाले 10 दोस्तों ने अपने परिवार और आसपास के लोगों को बचाने के लिए क्लब में खुद को सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया था। अच्छी बात है कि सभी युवक पूरी तरह से स्वस्थ है। আমাদের পাড়াতে 6 তারিখে একজনের পজিটিভ ধরা পড়ে। তো এটা হচ্ছে ওদের বন্ধু, ওদের সঙ্গে মেলামেশা করাতে ওরা নিজে থেকেই আমাদের কাছে আসে এবং পাড়ায় এসে বলে যে আমরা আলাদা হয়ে থাকতে চাই। তার জন্য পাড়ার সবার সহযোগিতার মধ্যে ওরা নিজেরাই থাকতে চেয়েছিল। ওখানে রেখে আমরা সব ব্যবস্থা করে ওদেরকে এখানে রাখা হয়, নিজেদের সাবধান এবং পাড়ার সাবধানের জন্য। कालिंगपुंग जिला ट्रैफिक पुलिस की तत्परता में वाहन चालक एवं आम यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज सेफ ड्राइव एंड सेफ लाइफ सचेतना कार्यक्रम आयोजित की गई थी।
कालिंपोंग में स्थित डम्मर चौक में आयोजित कार्यक्रम में ट्रैफिक पुलिस के शीर्ष अधिकारीगण, अन्य अधिकारीगण तथा कर्मचारी, चालक महासंघ के सभापति महेंद्र गुरुंग, महासचिव वांगदी तामांग तथा अन्य लोगों की उपस्थिति रही थी। इस अवसर में शहर में प्रतिदिन आवाजाही करने वाले वाहनों में सेफ ड्राइव सेफ लाइफ के स्टिकर को लगाया गया। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी ट्रैफिक पुलिस के ओसी सूरज लामा ने दी है। स्पेशली कार्यक्रम चाहिँ के हो भने अहिले जुन चाहिँ बढ्दो एक्सिडेन्ट जुन चाहिँ महामारीमा कोभिड-19 को महामारीमा पनि लकडाउन खोलेपछि जुन चाहिँ बढ्दो एक्सिडेन्ट भइरहेछ हाम्रो देशमा र त्यो कुरालाई ड्राइभरहरूलाई सचेतना गराउनु लागि र आजको स्पेशली हामीले सेफ ड्राइभ सेफ लाइफको प्रोग्राम सानो छोटो सर्ट पिरियडको गऱ्यौँ र आजको स्पेशली प्रोग्राम चाहिँ ड्राइभरहरूको जुन चाहिँ नेग्लिजेन्सी ड्रिङ्क गरेर विदाउट सिट बेल्ट विदाउट हेलमेट ट्रिपल राइडिङ त्यो विषयमै हामीले एउटा सानो एउटा अवेरनेस प्रोग्राम गरेको र हाम्रो डिएसपी ट्राफिक म्याडमको उपस्थितिमा र अर्को कुरा चाहिँ के भने कोभिड-19 को विषयमा अहिले हाम्रो गाउँ बस्तीमा जुन चाहिँ एउटा बढ्दो अब प्रथा भइसकेको छ। कुनै पनि बाहिर मानिस आयो या कसैलाई के लाग्यो छुवाछुतको एउटा जुन चाहिँ एउटा कम्युनल टाइपको छुवाछुत उनीहरूलाई पस्नु नदिने आउनु नदिने जुन चाहिँ एउटा छ त्यो विषयमा नै हामीले एउटा पब्लिकलाई एउटा अवेरनेस प्रोग्राम गऱ्यौँ र एउटा मेन सोसियल डिस्टेन्स हो र हामीले बचाउनुपर्छ। यो कोभिड-19 डरलाग्दो बिमार हो भन्ने होइन र यसबाट बाँच्ने उपायहरूमा हामीले ट्राफिक पुलिसबाट डिस्ट्रिक्ट पुलिसबाट त्यो हामीले सबैजना जनसाधारणलाई हामीले सूचित गरायौँ। तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।